कौन पढ़ेगा आज? हाँ, So Manish will be yours. Should I read it today? oh yes ma'am. Yes, yes, yes. Let's start. Okay. Yeah, you can start. Good In morning, the secret everyone. to health. Good morning. Yeah. Good morning. The Secret to Health. Dr. John Hagelin, quantum physicist and public policy expert. Our body is really the product of our thoughts. We are beginning to understand in medical science the degree to which the nature of thoughts and emotions actually determines the physical substance and structure and function of our bodies. Dr. Well, John DeMartini, we have known in the healing arts of a placebo effect. A placebo is something that supposedly has no impact and no effect on the body, like a sugar pill. You tell the patient that this is just as effective, and what happens is the placebo sometimes has the same effect, if not greater effect, than the medication that is supposed to be designed for that effect. They have found out that the human mind is the biggest factor in the healing arts, sometimes more so than the medication. As you are becoming aware of the magnitude of the secret, you will begin to see more clearly the underlying truth of certain occurrences in humankind, including in the area of health. The placebo effect is a powerful phenomenon. When patients think and truly believe the tablet is a cure, they will receive what they believe and they they will be receive cured. and they will cure. तो सबसे पहले तो आते हैं जॉन हैगलिन पे. इज ए क्वांटम फिजिसिस्ट. आजकल हम क्वांटम वर्ल्ड फील्ड में बात करते हैं. आजकल बहुत बात चलती है क्वांटम फील्ड की. तो एवरीथिंग इज एनर्जी. होल यूनिवर्स इज एनर्जी. Whole universe is about a consciousness. You are what is your conscious. You create the universe out of your consciousness. So body is really the product of our thought. ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी जो हमारा थॉट है वो है. What we think we attract and this is what we become. Because we are living in a quantum field. ये पूरी दुनिया एनर्जी से बनी हुई है, एटम्स वर्ल्ड के बनी है. और हमारे इर्द totally we are filled with these quantum fields. So we are always coming and going out of this. In a second we go and come out of this quantum field 6 to 7 times. तो हम जो सोचते हैं उस प्रकार की बॉडी हमारी बनती है. If we want to be healthy, we can think of healthy thoughts. जो हमारे थॉट्स होंगे उसी को मॉलिक्यूल्स को हम अट्रैक्ट करेंगे, पकड़ के रखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे. So to the degree the nature of thoughts and emotions actually determines the physical substance and structure and function of our body. जो हमारे इमोशंस और थॉट्स है उससे हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ, हमारा फंक्शन बनता है. और सबसे बड़ी बात है ये जो डॉक्टर जॉन मार्टिनी ने बोला है, डी मार्टिनी, कि प्लेसेबो इफेक्ट. नाउ व्हाट इज प्लेसेबो इफेक्ट? आपको दवाई बोल के कुछ भी दिया जाए, एक शुगर पिल भी दी जाए और बोला जाए ये दवाई है और इसका ये इफेक्ट है, एंड योर माइंड बिलीव्स इट. आपके दिमाग ने इसको बिलीव कर लिया. ये आपको शायद मालूम नहीं होगा. इट नीड टू आस्क डॉक्टर. उन्होंने कई बार ऐसी दवाई दी होगी आपको, क्योंकि उनको नहीं समझा कुछ हुआ नहीं. आप उनको लगता है आपके साथ कुछ हुआ नहीं है, बट आप डर गए हो, तो जस्ट गिव मेडिसिन फॉर द नेम सेक और आप अच्छे हो गए. तो ये होती है एक शुगर पिल भी आप दे दो, मगर ये बिलीफ डाल दो दिमाग में कि यही दवाई है और इससे आप ठीक होने वाले हो. यू गेट क्योर्ड बिकॉज आवर माइंड इज द ग्रेटेस्ट biggest factor in getting your health, in getting a better health, or in getting anything in life. आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, माइंड, आपका दिमाग ये सबसे बड़ा फैक्टर है.
हर चीज के लिए। तो वो भाई हेल्थ हो या और कोई हो, और प्लेसेबो इफेक्ट इसलिए काम करता है बिकॉज यू बिलीव इन इट एंड एवरीथिंग इज विद इन यू। आपके शरीर के अंदर पूरे फार्मेसी है, हर प्रकार की दवाई है उसके अंदर, एंड इट इज बेटर देन समटाइम द टेबलेट्स। जो दवाई काम नहीं करती वो आपका दिमाग काम कर सकता है, आपकी बिलीफ काम कर सकती है। इट इज सो पावरफुल। तो प्लेसेबो इफेक्ट का इसलिए इतना महत्व है कि वो समझने में इजी होता है कि जिसे एक बार वो, मैंने पहले भी बोला था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पेंसिलिन का इंजेक्शन खत्म हो गया था, इन्होंने पानी के इंजेक्शन दिया और ऑपरेशन किया है, एंड पीपल बिलीव्ड इट। मैं नहीं बोलता कि उनको बिल्कुल दर्द हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ, पर बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ दर्द कम हुआ एंड दे कुड बी ऑपरेटेड। तो इतनी बड़ी ताकत है प्लेसेबो इफेक्ट में, हमारे दिमाग में। वी कैन बिकम वॉट एवर वी वॉन्ट जस्ट बाय अवर थॉट्स एंड बिलीफ। यस मैम। मीन्स प्लेसेबो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, डमी ट्रीटमेंट टाइप का हो गया। हाँ, ये नाम दिया प्लेसेबो इफेक्ट, मतलब आपको दवाई नहीं दे रहे, कुछ और दे रहे हैं। समझो आपको लगता है आप बीमार हो, पर आप बीमार नहीं हो एक्चुअली, पर आप डॉक्टर का जान खा रहे हो या आप डर गए हो। दे विल गिव यू समथिंग, ये दवाई ले लो आप ठीक हो जाओगे, एंड यू रियली गेट क्योर्ड बिकॉज आपके मन में बिलीफ है कि मैंने दवाई ले ली है, अब मुझे क्योर होना है। ट्रस्ट। हाँ, इतनी बड़ी चीज है। यस सर। Dr. John DeMartini. If somebody is in a situation where they are sick and they have an alternative to try to explore what is in their mind creating it versus using medicine if it's an acute situation that could really bring death to them, then obviously the medicine is a wise thing to do while they explore what the mind is about. So you don't want to negate medicine. Every form of healing has a place. At the place. Yes, yes. Healing through the mind can work harmoniously with medicine. If pain is involved, then medicine can help to eliminate that pain, which then allows the person to be able to focus with great force on health. Thinking perfect health is something anybody can do privately within themselves, no matter what is happening around them. Lisa Nichols. The universe is a masterpiece of abundance. When you open yourself to feel the abundance of the universe, you will experience the wonder, joy, bliss, and all the great things that the universe has for you. Good health, good wealth, good nature. But when you shut yourself off with negative thoughts, you will feel the discomfort, you will feel the aches, you will feel the pain, and you will feel as if every day is painful to get through. Yes. समझो आपका कोई बंदा घर में बीमार हो गया है, उनको लग गया है, फ्रैक्चर हो गया है, ऐसा कुछ है कि मतलब इट इज अबाउट लाइफ एंड डेथ। तो बेसिकली दैट टाइम यू कैन नॉट वर्क ऑन द माइंड, यू हैव टू गिव हिम मेडिसिन। आपको ऑपरेट करना है, आपको मेडिसिन देना है, जो भी करना है, हर चीज की अपनी अपनी जगह है। जैसे देयर आर आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, फिर ये अपने बोलता है रेकी, और ये सब माइंड से खेलते हैं। एवरी मेडिसिन हैज इट्स ओन प्लेस, पर हमको मालूम होना चाहिए। सो यू डोंट वांट टू निगेट मेडिसिन, ऐसा नहीं तो हम मेडिसिन देना ही नहीं है, पर यू हैव टू नो व्हेन टू टेक मेडिसिन, हाउ मच टू टेक इट। ज्यादा मेडिसिन लेने से आप अपने शरीर को और बिगाड़ते हो, आपका लिमिट होना ही चाहिए। नहीं तो देयर आर पीपल हु जस्ट गो ऑन पॉपिंग पिल्स, सर दुख रहा है पिल्स, पेट में गड़बड़ी पिल्स, दे डोंट इवन ट्राई टू हील देमसेल्फ बाय देमसेल्फ। हम खुद अपनी कोशिश तो करें, एक बार थोड़ा सा दुख सहन कर ले, पर ये दवाई लेके जब आपका टाइम आएगा, when you are old enough, no medicine will work on you, and if you get critical that time because of more medicine you have taken, no medicine will work on you. तो बेटर है आप अभी से थोड़ा सा सहन करके दिमाग से हिल करिए अपने आप को, दिस विल गेट अ बेटर क्योर फॉर योरसेल्फ। बट समटाइम मेडिसिन हैज टू बी टेकन। इट कैन, मतलब साथ साथ में माइंड के भी करिए आप, मतलब माइंड एंड मेडिसिन कैन वर्क वेरी नाइसली विद ईच अदर, वेरी हार्मोनियसली, दोनों एक साथ में काम कर सकते हैं। So you have to focus on being healthy. At the same time, you take medicine
the medicine will work more faster, much better. The thinking about a perfect health is something that you can do always. Even if you're on a medication, you can always think about being perfectly healthy. वो मेडिसिन को और what you appreciate will appreciate. जिस चीज को आप appreciate करो उसका और भाव बढ़ेगा. What you appreciate will appreciate. If you appreciate health, health will appreciate. If you appreciate bad health, that will appreciate. तो आप जिसको appreciate करोगे, जिसके बारे में सोचोगे, जिस पे फोकस करोगे, वही बढ़ने वाला है. बोलते हैं ना, यूनिवर्स तो एक क्या चीज है, एबंडेंस से भरा हुआ है. इट्स अ मास्टरपीस. तो आप हमेशा जब सोचते हो एबंडेंस के बारे में, when you are thinking of universe, you are just thinking of abundance, nothing else. Universe is full of abundance. उसमें कोई कमी नहीं है. आपको जितना चाहिए, blessing, good health, जो चाहिए, सब कुछ वहां से मिलेगा. But if you are in positive thought, तो if you are in negative thoughts, आप हमेशा मतलब रोते रहोगे हेल्थ के लिए, पैसे के लिए, तो वो भी आपको देगा. वो he has got abundance of that also. The way you think and what you ask for, you will get from universe. आप दुख मांगो, दुख देगा. सुख मांगो, सुख देगा. So universe has got abundance of everything. It is your inner fear कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, यूनिवर्स का होगा नहीं होगा, यूनिवर्स देगा या मेरी काबिलियत है या नहीं है, वो आपका एक लिमिटेशन है, which you have to come out of. Yes, ma'am. Dr. Ben Johnson, physician, author, and leader in energy healing. We have got 1,000 different diagnoses and diseases out there. They are just the weak link. They are all the result of one thing, stress. If you put enough stress on the chain and you put enough stress on the system, then one of the links breaks. All stress begins with one negative thought, one thought that went unchecked, and then more thoughts came and more until stress manifested. The effect is stress, but the cause was negative thinking, and it all began with one little negative thought. No matter what you might have manifested, you can change it with one small positive thought and then another. Dr. John. एक नेगेटिव थॉट आया ना, एक मिनट मैडम, एक नेगेटिव थॉट आया तो वो एक चेन बन जाता है, एक के बाद एक आते रहता है टिल इट इज मैनिफेस्टेड. मतलब इफेक्ट क्या होगा, आपको जो होता है बीमारी हो गई, दैट्स द इफेक्ट. बट व्हाट वाज द कॉज? आप सोचोगे आपको थोड़ा सा एक मतलब पिंपल हो गया, आपको एक बॉइल हो गया, या आपका पैर थोड़ा दुखने लगा, आप बार बार सोच रहे हो एंड वो पेन बढ़ता है. आई डोंट नो व्हाट यू अप्रिशिएट विल अप्रिशिएट. तो पेन बढ़ते रहता है एंड देन होल लेग स्टार्ट पेनिंग. मगर उसी वक्त आपने एक सिंपल सा पॉजिटिव थॉट लगाया, अरे कुछ नहीं, मेरा लास्ट टाइम ही हुआ था, सब अच्छा हो गया था, एवरीथिंग इज फाइन, मेरी पूरी बॉडी चल रही है, थोड़ा सा दुख रहा है, कोई वांदा नहीं. एंड यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर पॉजिटिव थॉट्स. तो ये दुख भाग जाएगा, इट वॉन्ट स्टे. इट्स अ वेरी वीक लिंक. आप जो जानते रहोगे तो जोड़ता रहेगा, मगर आपने तोड़ दिया तो वो टूट जाएगा. इसमें Dr. John DeMartini, our physiology creates disease to give us feedback, to let us know we have an imbalanced perspective or we are not being loving and grateful. So the body's signs and symptoms are not something terrible. Dr. DeMartini is telling us that love and gratitude will dissolve all negativity in our lives, no matter what form it has taken. Love and gratitude can part seas, move mountains, and create miracles. And love and gratitude can dissolve any disease. any disease. The डॉक्टर क्या बोलते हैं, our physiology creates disease to give us feedback, to let us know we have an imbalanced perspective or we are not being loved and grateful. क्या होता है, our physiology creates disease to give us feedback. हमको feedback क्या दे रही है कि आप कहीं तो भी आपको प्यार की कमी है, कहीं तो भी आप में ग्रेटिट्यूड की कमी है, कुछ है जो आप मिस कर रहे हो. तो बॉडी साइंस आर सिम्टम
that something terrible is happening या something you are missing terribly, तो वो आपको सोचना है आप क्या मिस कर रहे हो. The telling is love and gratitude will dissolve any negativity. ये फैक्ट है. आप जितना प्यार दोगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे, तो ये सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी. You will be full of the love and gratitude. Because love can move mountain. कल भी हमने बोला था love can move mountain. ये बोला था. It's a fact. आप प्यार से क्या नहीं कर सकते हो. नफरत से खाली टूट सकता है, मगर प्यार से आप सब कुछ पा सकते हो. If you have love, you can do anything. It's the best miracle that can do. Yes, ma'am. Michael Bernard Beckwith. The question frequently asked is, when a person has manifested a disease in the body temple or some kind of discomfort in their life, can it be turned around through the power of right thinking? And the answer is absolutely yes. क्या लिखा है question? Frequently asked is, when a person has manifested disease in body temple, मतलब हमारी body एक मंदिर है, or some kind of discomfort in their life, can it be turned around through the power of right thinking? Yes. बोलते absolutely yes. सच्ची सोच से अच्छी सोच से हम कुछ भी कर सकते हैं. We can turn it around. आपकी बॉडी में, बॉडी को टेम्पल बोला है उन्होंने. आप समझिए बात को. इट्स अ टेम्पल. अच्छे भाव लाइए, अच्छे भाव पैदा करिए. जब भी आप जाते हो मंदिर में, आपको कोई गलत भाव नहीं आएंगे, आपको अच्छे भाव आते हैं. तो इसी तरह हम बॉडी को टेम्पल मानेंगे तो अच्छे भाव आएंगे. We'll do better for ourselves. Yes, ma'am. Laughter is the best medicine. Kathy Goodman, a personal story. I was diagnosed with breast cancer. I truly believed in my heart, with my strong faith, that I was already healed. Each day I would say, "Thank you for my healing." On and on I went. Thank you for my healing. I believed in my heart I was healed. I saw myself as if cancer was never in my body. One of the things I did to heal myself was to watch very funny movies. That's all we would do, was just laugh, and laugh. We couldn't afford to put any stress in my life because we knew stress was one of the worst things you can do while you are trying to heal yourself. From the time I was diagnosed to the time I was healed was approximately 3 months, and that's without any radiation or chemotherapy. This beautiful and inspiring story from Kathy Goodman demonstrates three magnificent powers in operation: the power of gratitude to heal, the power of faith to receive, and the power of laughter and joy to dissolve disease in our bodies. Kathy was inspired to include laughter as part of her healing after hearing about the story of Norman Cousins. एक मिनट इधर अपन जाते हैं. ये लेडी बोलती है उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, and how she healed herself by just watching good comedy movies and laughing all the time. इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, शायद थोड़ी बहुत विटामिन और ये सब लिया होगा उन्होंने, जैसे नॉर्मल कजिन ने भी दिखा नहीं होगा, पर ही टुक द विटामिन, मेनली विटामिन सी. तो इन्होंने भी किया होगा, पर मेन थिंग वाज शी वाज लाफिंग all the time. She was being happy all the time. She didn't give any place to sadness in her life. So without any chemo, she was again better. She was cured. She was always telling, I'm healing, I'm coming out, I'm doing better. तो उन्होंने स्ट्रेस को अपने लाइफ में जगह नहीं दी. स्ट्रेस इज समथिंग दैट क्रिएट्स द डिजीज, और उसको आप जगह दो. और होता क्या है, वंस यू हैव द डिजीज एंड यू आर बीन टोल्ड कि आपको ये हुआ है, आप उसके बारे में इतना सोचते हो, और सोचना छोड़ो, एक बॉयल भी हुआ ना, यू डू द गूगल, अल्टीमेट विल बी आपको कैंसर हो सकता है. एक गूगल की खासियत है. सो यू शुड नेवर गूगल. गूगल के पास बहुत सारा नॉलेज है, पर नॉलेज को कैसे पढ़ना है वो आपको आना चाहिए. आपको नहीं मालूम है तो मत जाइए गूगल पे. यू आर नॉट अ डॉक्टर, डोंट गो ऑन गूगल. आजकल आदमी गूगल पे जाके मेडिसिन ले रहे हैं.
क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है। जैसे एक हमारे दोस्त है, ही वो ये लिखते कुंडली लिखते, कुंडली, तो कुंडली का पूरा ये आ गया है, अभी ऐप आ गया है, तो उस पर वो काम करते हैं। तो मैंने तो आप करते हो, मैं भी कर सकता हूँ। बोलता नहीं हरीश, इसमें सारा नॉलेज दिया हुआ है, उसको कैसे पढ़ाता है। देयर आर टू लाइन्स यू टू रीड टुगेदर, समटाइम यू टू डिफरेंशिएट, तो उसको पढ़ना भी आना मांगता है, देन ओनली यू कैन गिव द मीनिंग। सेम वे ऑल अबाउट दिस मेडिसिन, यू शुड नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। आपको क्या एलर्जी है, कितना लेना चाहिए। खाली वो बोलेगा बॉयल हुआ तो कैंसर हो जाएगा, उसके डर से कैंसर की दवाई ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यू कैनॉट गो एंड डू समथिंग विच इज यू टू डू फॉर कैंसर। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है इनकी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें आपको कुछ प्रोत्साहन मिलता है, यू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए लाइफ में। यू हैव टू बी हैप्पी, जॉयस। पर इन्होंने जो 3 बात बोली है, हमको क्या सीखने को मिला। द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हील। हम ग्रेटिट्यूड करते गए, हील होते गए। ये पावर है ग्रेटिट्यूड का, आपको हील करता है। यू आर ऑलवेज बीइंग ग्रेटफुल टू एवरीथिंग दैट यू हैव। द पावर ऑफ फेथ टू रिसीव। वो हेल्थ मिली कैसे? बिकॉज यू हैड दैट फेथ। आपको इतना बिलीफ था उस पे, अपने आप पे, भगवान पे, यूनिवर्स में, दैट यू रिसीव्ड इट। द पावर ऑफ फेथ। एंड लास्ट, द बेस्ट इज द पावर ऑफ लाफ्टर एंड जॉय टू डिजोल्व द डिजीज। उसने डिजीज को डिजोल्व कर दिया। डिजीज तो था, इट वॉज डिजोल्व इन पावर इन दिस लाफ्टर। पर इन्होंने, एक व्यक्ति ने कैसे किया, शी हैड रेड अबाउट नॉर्मन कजिन्स। उनकी भी एक ग्रेट स्टोरी है। इट्स लेट्स गो एट अभी नॉर्मन कजिन। Norman had been diagnosed with an incurable disease. The doctors told him he had just a few months to live. Norman decided to heal himself. For 3 months, all he did was watch funny movies and laugh and laugh, laugh. The disease left his body in those 3 months, and the doctors proclaimed his recovery as a miracle. Miracle. As he laughed, Norman released all negativity and he released the disease. Laughter really is the best medicine. अभी ये नॉर्मन कजिन है ना, बहुत पहले पेपर में है ना, बहुत बहुत मतलब छोटा छोटा है, मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे आज तक याद है। एक्चुअली आई थिंक वो अकेले थे, क्या मालूम नहीं, बट ही वेंट टू होटल, ऐसा जो लिखा था। एंड ही टोल्ड दिस फ्रेंड टू गेट, मतलब उसका उनका तकलीफ क्या था, पूरा बॉडी एकदम ये हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, और सब बैंड हो गए थे। ही कुड नॉट मूव प्रॉपर्ली, ही कुड नॉट वर्क। तो बोलते 3 ही महीना बचा है, या जो बचा है, ये आज वन ऑफ हिज फ्रेंड टू गेट हिम ऑल द गुड कॉमेडी मूवीज। बोलता है मरना ही है तो खुश होकर मरो। एंड आई थिंक ही वाज टेकिंग विटामिन सी, सब कुछ बोले थे उनको, माना था विटामिन सी कैन फाइट इम्यूनिटी, इट गुड इम्यूनिटी पावर। तो हुआ कैसे कि वो रोज अच्छी मूवी देखते गए, कॉमेडी मूवी देखते गए, एंड ही अगेन वाज क्योर्ड एंड ही स्टार्टेड गोइंग टू वर्क एंड डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड टू सी। वो एकदम पागल हो गए, ये कैसे हो सकते हैं, मतलब इट्स इम्पॉसिबल थिंग। पर ये बंदे ने हंसते हंसते हर नेगेटिविटी को निकाल दिया। और ये डिजीज होते कैसे? बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। आपकी लाइफ में, आप रोजमर्रा जिंदगी में कुछ ना कुछ आपको इश्यू आते हैं एवरीडे। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ काम हो नहीं पाया, आप कर नहीं सकते हो, कोई किसी ने आपको ज्यादा काम दे दिया, कोई आपसे जलन कर रहा है, कोई आपको हैरान कर रहा है, एंड सो मेनी थिंग्स। You have to just write down all these things and laugh at everything. Nothing is true. एक कोई चीज रियल नहीं है। You have to laugh at it. हम कर नहीं पाते कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, वो क्या बोलेगा। अरे कुछ नहीं होता है, बॉस भी कुछ नहीं बोलता है। आपसे काम नहीं हुआ, जाकर क्लियर बोलिए सर मेरे को ये तकलीफ, मेरे काम नहीं हुआ। मगर ऐसे नहीं कि वो पूछे उसके बाद बोलो, आप पहले जाओ, सर ये मेरे को तकलीफ हो रही है, नहीं जम रहा है। यू बी अलर्ट, अब जाके सामने से बोलिए। हम लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, सब वो बुला तब बोलते हैं, फिर उनको गुस्सा आता है। इफ यू नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ही विल ट्राई टू बी विथ यू, ही विल ट्राई टू सपोर्ट यू। वो समझ पाएगा आपको। मगर आप लास्ट में बोलोगे जाके, जब पूरा टाइम खत्म हो गया और उसका भी कोई है, क्लाइंट है या उसका बॉस है, जब तक वो बुलाता नहीं, उसको डांटता नहीं, तब तक आप नहीं बोलोगे तो उनको गुस्से आने वाला ना। टेक यू टू मीटिंग, उधर आप बोलोगे नहीं मैं नहीं कर पाया, तो उनको गुस्सा आएगा। So nothing is true. You have to laugh at everything, all the possible things that comes to you.
is an issue are nothing, they're all fake. उस पे हंसी है and it will vanish. मगर हंसने से क्या होता है? You will be, you know why you should laugh? Because you get motivated. You get motivated. What you get motivated to act upon something. What is motivation? Motion. You have to go into motion. Motivation, motion. Motion में जाने का आपको. So you get motivated and do something. If you are not laughing, you are always feeling sad. आपको दुखी हो, आप पूरा दिन ऐसे मुंह लटका के बैठे हो, तो आपका एक्शन तो ही नहीं रहे. There is no motion in your life. You are just sitting idle. कुछ नहीं कर रहे हो. आप फ्रीज हो गए, तो कुछ नहीं होना है लाइफ में, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है. और वो कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हो. By fearing about what is not even happened till now. अरे मैं जाऊंगा, बॉस कुछ बोल देगा, अरे मेरा ये काम हुआ नहीं, मेरे को नुकसान हो जाएगा. ये आप खुद अपने दिमाग में करते हो और बाद में वो नुकसान हो जाता है. बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग अबाउट इट. आपने उसको बुलाया. सेम वे इन हेल्थ, इफ यू लाफ एट इट, वो भाग जाएगा. मगर इफ यू आर वरीड अबाउट इट, वो और आपके दिमाग पे छा जाएगा. यू विल बी क्लाउडेड विथ ऑल दिस वरीज एंड इट विल मैनिफेस्ट. आपके अंदर पूरी फार्मेसी है, मगर आपके वरी से आप कुछ और बोलते हो. जो आपको बोलते ना हो बॉडी को, यू से समथिंग डिफरेंट. मतलब बहुत तकलीफ हो रही है, अभी कुछ नहीं काम कर रहे हैं, बॉडी काम नहीं कर रही है. तो व्हाट मैसेज इज गोइंग टू ऑल योर सेल्स, नॉट अबाउट रिपेयरिंग यू, बट ऑफ बीइंग वरीड एंड ऑल दिस. तो वो लोग भी वरी में आ जाते हैं. दे आर कंफ्यूज्ड. रादर से आई एम फाइन, आई एम बेस्ट. तो अपने आप काम करेंगे आपको ठीक करने के लिए. मैसेज क्या गया है? आई एम फाइन. तो दे हैव टू मेक यू, दे हैव टू क्योर यू. उनको काम करना होता है उसके लिए. तो मोर यू लाफ, मोर यू गेट मोटिवेटेड, मोर यू कम टू एक्शन. ओके, यस. आई होप आई एम क्लियर इन दिस. इफ देयर एनीथिंग क्वेश्चन, आस्क राइट नाउ. फिर हम और आगे बढ़ जाएंगे. क्योंकि प्लेसेबो इफेक्ट आ गया, फिर ये आ गया, लाफिंग थेरेपी आ गई. देयर इज समथिंग, प्लीज आस्क. ओके, then we go ahead. It is Dr. clear. Ben Johnson. कोई कुछ पूछ रहा है? कह रहे थे it is clear. हम बोल रहे थे Okay, it is okay. clear. Yes, yes. Let's go ahead. We all come with a built-in basic program. It's called self-healing. You get a wound, it grows back together. You get a bacterial infection, the immune system comes and takes care of those bacteria and heals it up. The immune system is made to heal itself. Bob Proctor. Disease cannot live in a body that's in a healthy emotional state. Your body is casting off millions of cells every second, and it's also creating millions of new cells at the same time. Same time. Dr. John Hagelin. In fact, parts of our body are literally replaced every day. Other parts take a few months, other parts a couple of years. But within a few years, we each have a brand new physical body. If our entire body एक मिनट. पहले जॉनसन, we all come with a built-in program. क्या प्रोग्राम है? सेल्फ हीलिंग. आपको कुछ लग जाता है, अपना आप वो हिल होता है. भगवान ने ऐसी बॉडी बनाई कि वो अपने आप वापस एक साथ में हो गया. और स्किन ऐसी हो जाती है, आपको लगता है नहीं कभी कट भी आया था. और दाग भी नहीं दिखते हैं. कई बार दाग रह जाते हैं, पर इन जनरल आपको पूरा स्किन साफ हो जाता है. और दाग भी रहते हैं, थोड़ी अपनी गलती होती है या बहुत ज्यादा लगा तो आपको वार्म होता है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. इम्यूनिटी टेक केयर ऑफ इट. वाकई बैक्टीरिया को मारते हैं, जो भी करते हैं. तो इट इज ऑटोमेटिक. Disease cannot live in a body which is emotionally very high spirit. आपका इमोशनल स्टेट बहुत हाई है, तो डिजीज रहेगा ही नहीं वहां. क्यों? वो उनकी ब्रीडिंग जगह नहीं है. They would like to breed somewhere. There is a tension, stress है, ताकि आपकी बॉडी एसिड छोड़े. When a body become more acidic, it's a good breeding ground for them. आप खुश हो, हंसते रहते हो, तो वो नहीं जी पाते वहां डिजीज. इट कैनॉट टेक प्लेस. एंड बॉडी इज ऑलवेज कास्टिंग न्यू सेल्स, यू नो. तो आप जैसे सोचोगे उस तरह के सेल बनेंगे आपके. बॉडी इज ऑलवेज
casting our old cells, or throwing our old cells and creating new cells. Every second वो कितने सेल्स को फेंक देती है, नए सेल्स बनाती है. तो ये सेल्स बनते कहाँ है, कैसे बनते हैं? बिकॉज वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग, समझो आप आर्टिस्ट हो, आप ड्राइंग कर रहे हो, आपने सोचा मुझे ट्री का ड्रॉ करना, तो आप विल ड्रॉ ट्री. इफ यू से आई वांट टू ड्रॉ अ कैट, यू विल ड्रॉ कैट. इसी तरह हमारे सेल्स बनाते हम हैं. तो व्हाट टाइप ऑफ सेल्स विल बी मेड? द वे यू थिंक. आपने सोचा मुझे हेल्दी सेल बनाना, तो हेल्दी सेल बनाएगा वो बॉडी. आप उसको दोगे कि मुझे ऐसे सेल बनाना है जिसमें तकलीफ हो, या जो लास्ट टाइम थे वही बनाने हैं, जो मेरा पैर दुख रहा है उसमें जो सेल्स है वही सेल्स मांगते हैं, तो वही सेल्स बनेंगे. तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट थॉट एंड व्हाट कमांड यू गिव. जॉन हेगलिंग बोलते हैं, इन फैक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर लिटरली रिप्लेस्ड एवरी डे. रोज थोड़ा रिप्लेस है. there are some parts that are replaced every day. लीवर वीवर है तो पार्ट में रिप्लेस हो रहा है, बट within a year your whole body is replaced. तो आप जिस ढंग से सोचोगे, जिस ढंग से आप अपनी बॉडी को ट्रीट करोगे, उस तरह की आपकी बॉडी रहेगी. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू टेक इट. ठीक है? यस मैम. If our entire bodies are replaced within a few years, as science has proven, then how can it be that degeneration or illness remains in our bodies for years? It can only be held there by thought, by observation of the illness, and by the attention given to the illness. हमने वही बात की अभी कि जो आप सोचते वही रहेगा, नहीं तो नया बनना चाहिए ना. इट इज ऑलवेज, नहीं तो साइंटिफिकली प्रूव है कि आपकी बॉडी चेंज होती है, पूरी बॉडी बदल जाती है. तो होता क्यों है? बिकॉज यू थिंक दैट वे. आपके थॉट्स है, ये वही सेल आप वापस पैदा करते हो. देयर आर पीपल हु गेट हील्ड बिकॉज दे थिंक लाइक दैट. वो कमांड क्या देते हैं सेल को कि भाई हम परफेक्ट है, हमको हील होना है, तो वो सेल्स बनाती. तो इट इज ऑल विद इन यू. दवाई से ज्यादा. और मैंने तो एक वो भेजा था आपको बीच में यूट्यूब का, उसने तो वो नाम भूल जाता हूँ मैं, डिस्पेरिंग क्या नाम था. उनको तो पूरा बॉडी में सब बोल छूट गए. उन्होंने नहीं करे ऑपरेशन, नहीं लिया, उन्होंने अपने माइंड से अपने आप को हील किया. जो चीज डॉक्टर बोलते थे कि हील हो ही नहीं सकता है, उन्होंने विदाउट मेडिसिन नहीं होगी, मतलब विदाउट ऑपरेशन ही हील्ड हिमसेल्फ एंड ही वाज परफेक्ट इन 10 days. और वो आदमी फेमस आदमी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ. ऐसे 4-5 शो ली थी उनके, सब बड़े फेमस आदमी है. एंड यू शुड अंडरस्टैंड कितनी पावर है हमारे दिमाग में. दिस आर फैक्ट दैट हैपन. ये एक्सपेरिमेंट अपने आप हो गए, आपके सामने आपके हैं. यू डोंट टू डू एनीथिंग, दे ऑलरेडी डन ऑन देमसेल्फ. यू जस्ट हैव टू रीड देम, अंडरस्टैंड एंड डू इट इन योर लाइफ. ओके? यस मैम. Think thoughts of perfection. Think thoughts of perfection. Illness cannot exist in a body that has harmonious thoughts. No, there is only perfection, and as you observe perfection, you must summon that to you. Imperfect thoughts are the cause of all humanity's ills, including disease, poverty, and unhappiness. When we think negative thoughts, we are cutting ourselves off from our rightful heritage. Declare an intent. I think perfect thoughts. I see only perfection. I am perfection. I am perfection. I banished every bit of stiffness and lack of agility right out of my body. I focused on seeing my body as flexible and as perfect as a child's, and every stiff and aching joint vanished. I literally did this overnight. You can see that beliefs about aging are all in our minds. Science explains that we have a brand new body in a very short time. Aging is limited thinking, so release those thoughts from your consciousness and know that your body is only months old, no matter how many birthdays you have chalked up in your mind. For your next birthday, do yourself a favor and celebrate it as your first birthday. Don't cover your cake with 60 candles unless you want to summon aging to you. Unfortunately, Western society has become fixated on age.
And in reality, there is no such thing. You can think your way to the perfect state of health, the perfect body, the perfect weight, and eternal youth. You can bring it into being through your consistent thinking of perfection. यस, तो एक Bob तो हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से नहीं बनाते हैं एवरी ईयर. सो थिंक थॉट ऑफ परफेक्शन. इलनेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन द बॉडी. आप जो सोचते रहोगे कि हमारी बॉडी परफेक्ट है, इलनेस कैन नॉट एग्जिस्ट. और आप ही सोच सकते हो ना, जब बॉडी पूरी नहीं बनती है तो व्हाई डज इलनेस स्टे फॉर इयर्स एंड इयर्स? यू शुड थिंक ओनली अबाउट परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हेल्थ. और उसी को आप डिमांड करिए, उससे मांगिए, उसको समन करिए. आस्क फॉर इट एंड कॉल फॉर इट. आप जो भी सोचते हो, मतलब हर एक चीज हो, हेल्थ हो, मनी हो, जो भी हो, जितने भी नेगेटिव सोचोगे उतना पूरा हो जाएगा. बिकॉज आवर माइंड इज वेरी पावरफुल. हम खुद उसको बुलाते हैं बाय थिंकिंग ऑफ दैट थिंग. वी आर कटिंग अवर सेल्फ ऑफ फ्रॉम द राइटफुल हेरिटेज. हमारा जो हेरिटेज है वो क्या क्या है? ऑफ बीइंग ग्रेट, बहुत अच्छा है, सब कुछ हेल्दी हो. हम उसको सोच के, उल्टा सोच के हम सब कुछ उल्टा करते हैं. सो यू हैव टू डिक्लेयर योर इंटेंशन कि आई एम परफेक्ट. मेरी बॉडी परफेक्ट है, हर चीज से परफेक्ट हो, मेरा दिमाग परफेक्ट है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक. हर मतलब जो सोच है ना नेगेटिव सोच में, अभी आई एम गेटिंग ओल्ड, मेरे को स्टिफनेस आ रही है, मेरे को ये हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, उनको निकाल दीजिए. थिंक ऑफ समथिंग गुड जो आपको चाहिए, व्हाट यू लव टू हैव. देयर आर मेनी पीपल जो मेकअप भी नहीं करते फिर भी इतने सुंदर, क्यों? कि वो अंदर से खुश है. You know, you will radiate not by your makeup but by your inner happiness. The way you radiate, आप में लाली आ जाएगी, you know, because you are internally happy. जब तक वो नहीं है ना, मेकअप क्या है, आपने किया वापस निकाल दिया, आपके अंदर की स्किन तो खराब हो रही है ना. तो you have to radiate that happiness, that goodness from yourself. तो आपको कोई भी छोटी छोटी बातें ना याद करके दुखी नहीं होना है. उसी से ये दुख बढ़ता है और ये मैनिफेस्ट होता है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. और इन्होंने तो क्या किया, आई बेनिश्ड एवरी बिट ऑफ स्टिफनेस एंड लैक ऑफ एजिलिटी राइट आउट ऑफ माय बॉडी. बोलता है मैंने निकाल दिया स्टिफनेस और लैक ऑफ एजिलिटी. आई फोकस्ड ऑन सीइंग माय बॉडी एज अ फ्लेक्सिबल एंड एज परफेक्ट एज चाइल्ड्स एंड एवरी स्टिफ एंड एचिंग जॉइंट्स वेनिश्ड. मैंने अपने आप को बच्चे की तरह अपनी बॉडी को देखा और सब कुछ निकल गया. आई लिटरली डिड दिस ओवरनाइट. आप सोचो कितनी ताकत एक बिलीफ में, एक सोच में. तो यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट बीइंग हेल्दी, बीइंग यंग, और वो होता है. आप लिमिटेड थिंकिंग से काम करेंगे तो विल ऑलवेज थिंक अबाउट गेटिंग ओल्ड, रिंकल्स, दिस दैट, पैर दुखने आ गया, वो दुखने आ गया. और अभी तो क्या फैशन हो गई है, हर एक को लगता है मेरा घुटना दुखना ही मांगता है. तो आपके कितने भी बर्थडे आपने सेलिब्रेट किए होंगे, डोंट वरी. थिंक यू आर एज यंग एज यू वांट टू एंड डू नॉट पुट सो मेनी कैंडल्स ऑन योर केक टू रिमाइंड यू व्हाट एज यू आर. आप तो अभी बच्चे हो यार, अभी तो और बहुत बाकी लाइफ जीना है. आप में ताकत तो आप 100 साल के ऊपर भी जी सकते हो. इवन इफ यू आर 60, लॉट ऑफ एज इज देयर, यू आर स्टिल यंग. इफ यू आर गोइंग टू स्टे फॉर लिव फॉर 110 और 20 इयर्स, तो आप आधे एज पहुंचे हो, आप ओल्ड हो ही नहीं. तो जिंदगी को बड़े मजे से जीना है, बड़े प्यार से जीना है, और हंसते हंसते, लाइक ए चाइल्ड. आप हमेशा अपने बारे में सब अच्छा सोचिए. हेल्थ अच्छा है, पैसा अच्छा है, रिलेशनशिप आर फैंटास्टिक. विदाउट रिलेशनशिप नथिंग एग्जिस्ट. आपके हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है वो. आपके घर पे जो रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है आपके, तो आपके हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है इसका. So you have to maintain the relationship not only with people around you, but with the environment around you. You have to be happy with everything that you have. But the relationship is it's a temple. एक मंदिर है आपके सोल का. आप जो सोल आपका है ना, अंदर स्पिरिट है, उसका मंदिर कहते हैं ये रिलेशनशिप. आपके एनवायरमेंट से, आपके जो आदमी उनसे ये जो अच्छा रिलेशनशिप हो, अच्छा मन हो, सुख मिलता हो, तो you will become healthy.
You can think your way to perfect state of health, the perfect body, the perfect weight, and eternal youth. You can bring into being through your consistent thinking of perfection. बार बार आपको परफेक्शन के बारे में सोचना है, ये सब हो सकता है. Yes, ma'am. Bob Proctor. If you have a disease and you're focusing on it and you are talking to people about it, you are going to create more disease cells. See yourself living in a perfectly healthy body. Let the doctor look after the disease. One of the things that people often do when they have an illness is talk about it all the time. That's because they are thinking about it all the time. So they are just verbalizing their thoughts. If you are feeling a little unwell, don't talk about it unless you want more of it. Know that your thought was responsible and repeat as often as you can. I feel wonderful, I feel so good, and I really feel it. If you are not feeling great and somebody asks you how you are feeling, just be grateful that that person has reminded you to think thoughts of feeling well. Speak only the words of what you want. You cannot catch anything unless you think you can, and thinking you can is inviting to you with your thought. You are also inviting illness if you are listening to people talking about their illness. As you listen, you are giving all your thought and focus to illness. And when you give all of your thought to something, you are asking for it. And you are certainly not helping them. You are adding energy to their illness. If you really want to help that person, change the conversation to good things. If you can, or be on your way, as you walk away, give your powerful thoughts and feelings to seeing that the person well and then let it go. Yes. तो आप Lisa Nichols. एक मिनट, मतलब आप give your powerful thoughts and feeling to sing the person well. जिसको भी आप जाते हो मिलने को, जो बीमार है उसको भी आप ऐसे ही पावरफुल थॉट दे आइए कि यू आर फाइन. मतलब आपको एक बिलीफ डालिए इसके अंदर कि भाई तू तो चंगा है और तू हमेशा एकदम मस्त रहा है, तेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आया. डोंट टॉक अबाउट इलनेस. तो हम लोग क्या आते हैं, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, अरे बाप रे इतना हो गया. एंड व्हाट आर वी डूइंग? वी आर क्रिएटिंग दैट फियर व्हिच शुड नॉट बी क्रिएटेड. हमको वो सोचना ही नहीं है. हमारे हर सेल को हमको यही बोलना, आप परफेक्ट हो, यू आर डूइंग फैंटास्टिक. और हम बाद में क्या कर लेते हैं, जब बीमारी आती है कोई बताता है इलनेस है आपको, एंड देयर आर पीपल टॉकिंग अबाउट इट. आप बीमार हो गए, पीपल कम टू मीट यू, देन दे विल आस्क यू व्हाट हैपेंड. पूरा स्टोरी आप बोलोगे, फिर बोलता है हमारे कजिन को ये हुआ था, उनको तो ये तकलीफ हो गई, हमारे को ये हुआ था, उन्होंने ये कर लिया. और आपको चिंता भी दे जाएंगे, आपको अपने घर की बनी हुई मेडिसिन भी देके जाएंगे जो कुछ काम नहीं करती है, विच आर यूजलेस. मगर आप इतने डर जाते हो कि यू विल ट्राई एवरीथिंग. मतलब वादा ही क्या है, मतलब ये तो आयुर्वेदिक है, तकलीफ ही क्या है, पर सब कुछ बराबर है, पर बिना वजह सब डालते रहोगे आप अंदर क्या? यू गो ऑन पुटिंग एवरीथिंग. सो टिल यू डोंट थिंक आउट समथिंग, यू डोंट गेट इट. और आप सोच सोच के उसको अंदर लाते हो चीज को, वो बीमारी को. तो आप कुछ भी सोचते हो साथ में रहती है आपके, चाहे वो बीमारी हो कुछ भी हो. तो बाय थिंकिंग लॉट अबाउट दैट थिंग, और यू आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग. जिस पे आप फोकस करो वही तो आएगा. जिस पे आप फोकस करो वही आप बुलाओगे, वही आपके अंदर आएगा. सो बाय थिंकिंग अगेन एंड थिंकिंग इन अ नेगेटिव वे इज समथिंग दैट प्रोड्यूस दिस इलनेस. बाकी कोई रास्ता नहीं है इलनेस का. इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, द इलनेस कैन नॉट कम टू. ताकत ही नहीं है. यस मैम. Lisa Nichols. Let's say you have two people, both stricken with something, but one chooses to focus on joy. One chooses to live in possibility and hopefulness, focusing on all the reasons why she should be joyful and grateful. Then you have the second person, same diagnosis, but the second chooses to focus on the disease, the pain, and the woe is me. Bob Doyle. When people are completely focused on what's wrong and their symptoms, they will perpetuate it. The healing will not occur
until they shift their attention from being sick to being well, because that's the law of attraction. Let us remember, so far as we can, that every unpleasant thought is a bad thing literally put in the body. Put in the body. जो भी बैड सोच है, बैड थिंग है, वो आप अंदर डालते हो अनप्रेजेंट थॉट को, और आपके बॉडी को आप तकलीफ देते हो. There is no reason to get any illness without thinking about it. When people are completely focused on what's wrong and their symptoms, तो हमेशा वही देखे क्या मेरे में तकलीफ है, और उसी सिम्टम्स है कि अरे थोड़ा अभी बुखार आ रहा है, थोड़ा गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है, बार बार बोलते हो, तो गर्म नहीं होगा तो भी गर्म हो जाएगा. आपको नहीं आता बुखार तो आएगा. आप बार बार अरे थोड़ा सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, आप बार बार बोलते रहो, वो सर इतना जोर का दुखने आएगा, यू वोंट बी एबल टू बेयर इट. ये जो आदत है आदमी की बार बार गलत सोचने का, जो थोड़ी सी बीमारी उसमें ज्यादा सोच देने का, उसको ज्यादा जोर देने का, ज्यादा इज्जत देने का, उसको उसी तकलीफ होती है. मोर यू रिस्पेक्ट समथिंग दैट इज नॉट टू बी रिस्पेक्टेड, द मोर दैट पर्सन विल गेट ईगो, यू नो. तो ये बीमारी भी ईगो से आती है आपकी. उनको ईगो आता है कि ये तो डर गया है बच्चा, अब आप मुझको अटैक करते हैं. लेट्स हैव अ फन. दे वांट टू हैव फन विथ यू. वो आदमी आपसे खेल रहे हैं और सेल्स. So you have to understand, you have to think about a great thoughts, only positive thoughts. फालतू में कोई भी ये डर लगा के, कोई डर के कोई होता नहीं. You have to fight everything yourself. Nobody is going to help you except yourself. तो तैयार हो जाइए. Start thinking good. Start talking good to yourself. सबसे बड़ी बात है सेल्फ टॉक. आप अपने आप को क्या बोलते हो? Whenever you're doing something और कुछ हो गया इशू, तो how did you react? How did you act and react to that issue, and what was the talk? ये very important. उस पर सब बेस्ड है कि आप कैसे सोचते हो, क्या बोलते हो अपने आप को. क्यों जो बीमारी आती है, it is because you attracted it by your thoughts, by your words, by your emotions. पर आपने उसको लाया अंदर. Yes sir. Yes ma'am. Dr. John Hagelin. Dr. John Hagelin. Happier thoughts lead to essentially a happier biochemistry, a happier, healthier body. Negative thoughts and stress have been shown to seriously degrade the body and the functioning of the brain, because it's our thoughts and emotions that are continuously reassembling, reorganizing, recreating our body. No matter what you have manifested in regards to your body, you can change it inside and out. Start thinking happy thoughts and start being happy. Happiness is a feeling, state of being. You have your finger on the feeling happy button. Press it now and keep your finger pressed down on it firmly, no matter what is happening around you. मतलब पूरा क्या बोल रहे हैं कि बी हैप्पी. हैप्पी थॉट लाइए. जब भी कुछ तकलीफ हो, थॉट थिंक अबाउट समथिंग व्हाट वाज गुड विथ यू. क्या आगे पास्ट में अच्छा हुआ आपके साथ, कहाँ पर आप बहुत खुश थे. ऑलवेज बी हैप्पी. इनका मेन बोलना ये है, ऑलवेज बी हैप्पी, बी इन हैप्पी थॉट्स. और सब कुछ आप सोचते जब भी तो अच्छा सोचिए. आपको मेमोरी भी याद करनी है, अच्छी मेमोरी याद करिए, सो दैट इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू यू. स्ट्रेस से क्या होता है, उल्टा डिजीज बढ़ता है. स्ट्रेस इज समथिंग दैट इज प्रोड्यूस ऑल डिजीज. ये डिजीज नए नए कहाँ से आए? पहले बंदा काम करता था, पूरा दिन काम करता था, उनको सोचने को टाइम नहीं मिलता था कि मैं दुखी हूं नहीं हूं. पूरा दिन काम करता था, फिर आता था. आजकल हम लोग कॉम्पिटेटिव काम करते हैं, पूरा दिन सोच सकते हैं व्हाट इज रॉन्ग विथ अस. और रॉन्ग चीज है ना जल्दी याद आती सबको, अच्छा याद नहीं आता है. अरे ये तकलीफ हो गया, अरे वो तकलीफ हो गया, अरे वो हो जाएगा, अरे अरे करके पूरा बांट करते हैं. सो बेटर इज दैट यू शुड नो व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाई यू आर थिंकिंग दैट वे, और वो थॉट से क्या होता है, हाउ इट कैन हैप्पी. बोलते ना हैप्पी बटन है आपके यहाँ, वो दबा के रखिए ताकि यू विल रिमेन हैप्पी. दबा के तो नहीं सकते, बट वेन एवर यू गेट सिम्टम दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग, सम गुड मूवी और सो ऑन. सीन कोई अपने ये कॉमेडी मूवी देखा, सीरियल देखा होगा, उसका सोचिए. बी हैप्पी अबाउट इट ऑलवेज. यस. Dr. Ben Johnson. क्या क्या पुनाकी क्या बोला आपने पूछा? When we have doubt about
बिनाकी जी? हाँ, मैंने लिखा कि when we have doubts about achieving anything good, it never manifests in our life. हाँ, ओके। Similarly, when we apply doubt to get any disease, the same effect happens and you never get that disease. Yes, yes. If you doubt about disease, disease नहीं आएगा. And if you doubt about healthy, disease आ जाएगा. Yes, yeah, truly right. Thank you, sir. तो टेक्नोलॉजी Yes, सेम madam. अप्लाई करना है. हाँ, Dr. no Ben matter. Johnson. पढ़ा क्या? No matter what you have manifested in regard to your body. Dr. Ben हाँ सर, Johnson वो से हो बोलो. गया. Okay. Yes. Dr. Yes, Ben right. Johnson. हाँ, Remove physiological stress from the body, and the body does what it was designed to do. It heals itself. You don't have to fight to get rid of a disease. Just a simple process of letting go of negative thoughts will allow your natural state of health to emerge within you, and your body will heal itself. heal itself. The simple process of letting go negative thoughts. बस छोड़ दो. Yes, ma'am. Michael Bernard Beckwith. I have seen kidneys regenerated. I have seen cancer dissolved. I have seen eyesight improve and come back. I had been wearing reading glasses for about 3 years before I discovered the secret. One night, as I was tracing the knowledge of the secret back through the centuries, I found myself reaching for my glasses to see what I was reading, and I stopped in my tracks. The realization of what I had done struck me like a lightning bolt. I had listened to society's message that eyesight diminishes with age. I had watched people stretch their arms out so that they could read something. I had given my thought to eyesight diminishing with age, and I had brought it to me. I hadn't done it deliberately, but I had done it. I knew that what I had brought into being with thoughts I could change, so I immediately imagined myself seeing as clearly as when I was 21 years old. I saw myself in dark restaurants, on planes, and at my computer, reading clearly and effortlessly. And I said over and over, I can see clearly, I can see clearly. I felt the feelings of gratitude and excitement for having clear vision. In 3 days, my eyesight had been restored, and I now do not own reading glasses. I can see clearly. When I told Dr. Ben Johnson, one of the teachers from The Secret, about what I had done, he said to me, "Do you realize what had to happen to your eyes for you to do that in 3 days?" I replied, "No, and thank goodness I didn't know, so that thought was not in my head. I just knew I could do it and that I could do it fast. Sometimes less information is better." Dr. Yes. Johnson, वो बोलता है ignorance is bliss. Ignorance is a bliss. Sometimes less knowledge is better. अब ज्यादा सोचते हो, ज्यादा मालूम है, तो ज्यादा आप उल्टा सोचते हो. लेकिन नो कि ये मतलब समझो कि शरीर गर्म है तो बुखार आएगा, आपको मालूम है, तो आप बार बार चेक करोगे, बुखार को बुला लोगे. You will just call it. तो you have to let go of negative thoughts. Yes, बिनागी जी. तो आपको ये जो गलत सोच है, गलत थॉट्स है, उसको छोड़ देना है and replace them with the positive thoughts. When you are in a positive nature and emotions are positive, you call upon yourself to repair yourself. You will give a command to your cells and everybody, every hormones, to come out, fight with the bacteria and remove it. But when you're worried, when you're stressed, you don't know what to do. आप खुद दुखी हो, आप कमांड भी क्या दोगे? वही दोगे दुख का. नहीं सब तकलीफ है, कुछ बराबर नहीं है. And that type of command you give, वही आपको मिलता है वापस. Nature also shed their leaves. Yes, ma'am. Nature also shed their leaves. वो तो आता ही है, सबका टाइम आता है. बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. देयर वाज एक जगह का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को. वहां पर ये सोचते थे कि जैसे आदमी बूढ़ा होता है, ही बिकम मोर एक्टिव एंड मोर दिस अजाइल. तो वहां के आदमी लोग जैसे जैसे बूढ़े होते थे, दे टू शाइन.
देयर वाज अनदर प्लेस इन आई थिंक समवेयर नियर ऑस्ट्रेलिया समथिंग, वहां थॉट थी कि जब एक औरत जन्म देती है बच्चे को तो इट्स अ गॉडली थिंग, यू नो, और भगवान साथ में है आपके। तो वो जब प्रेग्नेंट थी और जब टाइम आता था, एक हट रखा था, बाहर सब लोग ढोल ताजे बजा रहे, सब हंस रहे हैं, और 2-3 मिनट में बर्थ। तो वहां बच्चे मरते नहीं थे इन द बर्थ, बिकॉज इट वॉज नेचुरल थिंग फॉर देम कि तो बर्थ होना ही है, कोई बात बड़ी नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं था। सो दे आर नॉट कंफ्यूजिंग देयर माइंड विद बैड थॉट्स। हम क्या करते हैं, कंफ्यूज करते तो बेड रेस्ट आ जाता है, ये आता है, सब तकलीफ आती है, हमको आती है। क्यों हमको आती है? बिकॉज वी थिंक दैट वे, हमारी सोच ही ऐसी है। ओके, सो कैन वी स्टॉप हियर नाउ? हम कहाँ तक आ गए? वो जगह सर जापान में ओकिनावा है। ओकिनावा, ओके। वहां पे क्या इकिगाई अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें इकिगाई बुक, वो में पढ़ा है, यस। हाँ, उसमें है ओकिनावा का रेफरेंस कि वहां जनरली सब एजेड लोग ही रहते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी, वेरी हेल्दी, वेरी हैप्पी, और वो काम करते रहते हैं, वो कभी घर पे नहीं बैठते। नहीं, काम मतलब वो अपना इस तरह का रोजी रोटी नहीं कमाते पर एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। हाँ वही, मतलब वो प्लांटिंग करेंगे, ये करेंगे, मतलब बैठते नहीं है, दे आर ऑलवेज मूविंग। हाँ, और पिनाकी सर ने जो लिखा ना नीचे कि अगर वी डाउट डिजीज विल नॉट कम, डिजीज विल कम, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। सबकॉन्शियस माइंड को आप बोलोगे आई एम नॉट इल, वो तो बोलेगा यू आर इल। उसको आप नेगेटिव दो समझता ही नहीं, उसको तो वर्ड बोलना ही नहीं आपको, जो आप बोलोगे वही सोचेगा। हाँ, उसको तो हेल्दी बोलना पड़ेगा। अगर आपने बोला आई एम नॉट इल तो बोलता है यू आर इल। यू डोंट हैव, मतलब यू डोंट हैव टू सीक आउट इल, मतलब इलनेस का सोचना ही नहीं आपको, मतलब हेल्दी का ही सोचना आपको। नहीं, डाउट नहीं करने का कि मेरे को डिजीज नहीं आएगी, डिजीज नहीं आएगी, तो डिजीज डाउट रखने का नहीं हो, तो डिजीज जस्ट थिंक यू आर हेल्दी ऑलवेज। यू हैव टू ऑलवेज फील दैट आई एम हेल्दी, देन ओनली आई एम हेल्दी, यस। सर मोहन सर क्या किसी की डेथ हो गई शायद, आपको कुछ खबर आई क्या? किसका? मोहन पोजा। नहीं मालूम नहीं मेरे को। हाँ, उन्होंने कोई मैसेज डाला है, आई डोंट नो वेदर शी सिस्टर और वाइफ, आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ओह शिट, शायद आएगा मेरे को मैसेज। सवेरे अर्ली मॉर्निंग आया था मैसेज, तो आई डोंट नो, अभी मैंने पूछा है कौन है ये, इसको थोड़ी देर पता पड़ेगा। सरनेम से तो उनकी वाइफ ही लग रही है, देखिए सब कैसा होता है। नहीं, कहाँ है? मेरे पास आया, मेरे पर्सनल मैसेज भेजा, पर्सनल मैसेज। हाँ, पर्सनल नहीं आया मेरे को, मालूम नहीं। मेरे पास पर्सनल मैसेज आया। ओके ओके। हाँ, आई लॉस्ट माय बेटर हाफ ऑफ माय लाइफ। ओहो, 5th मई को डेथ हुई है। शिट यार, नहीं पढ़ा मैं, किसे रह गया मेरा। सैटरडे को लिखा, सैटरडे में पूरा दिन कुछ था। नहीं, मेरे पास तो अभी सवेरे ही मैसेज आया, वो 17 में का कुछ। नहीं, सैटरडे मेरे को सैटरडे को भेजा है। ओह, आई मिस्ड इट, वेरी सॉरी। बाप रे। ठीक है, बाद में लिखता हूँ बहुत बड़ा मैसेज। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मैं मिस किया था। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर खड़े बंद कर रहे हैं 135, राइट? पेज नंबर, हाँ, पेज नंबर 145 एज पर पीडीएफ और 135। डॉक्टर जॉनसन एलिमिनेटेड। हाँ सर, ये एक पैराग्राफ सिर्फ पढ़ लूं सर, फिर नथिंग इज इनक्योरेबल जाएंगे, कल से स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, so Dr. Johnson eliminated an incurable disease from his own body. So the restoration of my eyesight seemed like nothing to me compared with his own miracle story. In fact, I expected my eyesight to come back overnight, so 3 days was no miracle in my mind. Remember, time and size do not exist in the universe. It is as easy to heal a pimple as a disease. The process is identical. The difference is in our minds. So if you have attracted some affliction to you, reduce it in your mind to the size of a pimple. Let go of all negative thoughts and then focus on the perfection of health. क्या बात है। I didn't continue that. तो उनका जो था, डॉक्टर जॉनसन का जो बीमारी था वो इतनी बड़ी थी, तो बोलती मेरा आईसाइट तो कुछ था ही नहीं, वो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। पर इन्होंने जो बोला है, रिमेंबर टाइम एंड साइज डू नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, मतलब पिंपल हो या बड़ी बीमारी हो, इलाज एक तरीका है, मतलब रिमूव द नेगेटिविटी। अब बड़ी से बड़ी बीमारी को एक पिंपल समझिए और उसको नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। एनीथिंग कैन बी हील्ड, कुछ भी चीज हील हो सकती है।
बोलते प्रोसेस इज आइडेंटिकल। बट उन्होंने सर 3 दिन में कैसे आईसाइट अपनी इम्प्रूव कर ली, ये काफी। अरे एक बात बोलता हूँ आपको, ये मैं अभी वापस चश्मा पहनने लगा, मैं बीच में नहीं पहनता था, एंड आई कुड रीड। अभी वापस मैं कर रहा हूँ मैजिक बुक, तो मेरे को ये बहुत छोटे होते हैं, मैं लगा चश्मा, तो अभी मैं बार बार लगाता हूँ एवरी टाइम। ये पढ़ के मैंने भी किया था, मतलब ऐसे एकदम परफेक्ट नहीं, पर बहुत कुछ मैं पढ़ पाता आराम से। पर अभी आदत डाल दी पहनने की, तो अभी मेरे को ये नहीं दिख रहा बड़ा बोलो। और ये मैजिक बुक करने के लिए मैं इसमें पढ़ने के लिए डालता हूँ, आई कैन रीड इट ऑल, नहीं तो वांधा नहीं आता है, आई कैन रीड। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है अक्षर, पर इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखो, द प्रोसेस इज आइडेंटिकल, द डिफरेंस इज इन अवर माइंड। सो इफ यू हैव, मैं थोड़ा ये करना पड़ता है, बट वंस आई स्टार्ट रीडिंग ना, तो अपना आंख को उसको ये करती है, मेरी आंख है ना उसका वो कर देगी, जूम हो जाएगी, जो भी मतलब टू गेट अलाइंड। राइट। ओके, सो इट वाज ग्रेट रीडिंग। और मोहन जी को भी लिखता हूँ मैसेज, मेरा एकदम रह गया सैटरडे से। मनीष सेल्वी जी को थैंक यू, बहुत अच्छी रीडिंग करी मनीष सेल्वी जी आपने। Yes, Thank you. It was fantastic. Okay. Have a nice day, everyone. Thank you. Thank you. Okay.